بھائی مجھے آپ سے کچھ کام تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز۔ ماویہ یونیفارم پہنا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک صنم کی آواز پیچھے سے سنائی دی۔ اگر ٹائم نہیں بھی ہوا تو میں اپنی بہن کے لیے ٹائم نکالوں گا، میری بہن بہت کم اپنے بھائی کو مخاطب کرتی ہے۔ ماویہ نے پلٹ کر صنم کو دیکھتے ہوئے کہا اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آؤ یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ماویہ نے صنم کے شولڈر کے گرد ہاتھ رکھ کر وہیں لان میں چیئر پر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو صنم، کیا کہنا چاہ رہی تھی تم؟ ماویہ نے صنم کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بھائی وہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ… صنم اپنی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کشمکش میں پڑ گئی کہ ماویہ کو کیسے بتائے۔ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے وہ بلا جھجک مجھ سے کہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ماویہ نے اس کو نروس دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ بھائی میری یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، ساحر، دوسرے ڈپارٹمنٹ کا ہے، 1 مہینے سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ صنم نے ڈرتے ہوئے ماویہ سے کہا۔ صنم کی بات سن کر غصے میں ماویہ کے ماتھے کی موجود نس ابھری۔ صنم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ شروع میں وہ صرف ڈپارٹمنٹ تک میرا پیچھا کرتا تھا، پھر اس نے فضول باتیں اور جملے کسنے شروع کر دیے۔ میں اس کو ابھی بھی اگنور کرتی ہوں، اگر وہ میرا راستہ نہ روکتا، اور کل جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھانا چاہا۔ صنم رونے لگی۔ ماویہ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ بھائی اگر وہ مہربان شخص بیچ میں آ کر اس زہر سے مجھے نہ بچاتا تو… یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے؟ ماویہ نے اس کی بات سن کر غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ غصے میں… پہلے میں نے سوچا یونیورسٹی جانا چھوڑ دوں، مگر پھر پیپر سر پر تھے، پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی، مگر اب اس کی بڑھتی ہوئی بدتمیزی کی وجہ سے بتایا۔ صنم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں یونیورسٹی میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ماویہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جائیں گے؟ صنم نے ماویہ کو کہتے ہوئے کہا۔ تو اس میں اتنی حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ، ماویہ نے ریسٹ واش میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ صنم ساحر کا پورا نام کیا ہے اور کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے وہ؟ ماویہ نے یونیورسٹی کے پاس گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ بھائی ایک بات مانیں گے پلیز؟ صنم نے ڈپارٹمنٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ آرام سے بات سمجھائیے گا۔ ماویہ اپنی بہن کی سافٹ نیچر جانتا تھا، اس لیے اطمینان دلاتے ہوئے بولا۔ اوکے صنم، میں ایسا ہی کروں گا، اسے آرام سے سمجھاؤں گا، اب تم اپنی کلاس میں جاؤ۔ صنم بھی اپنے بھائی کے نیچر اور غصے اچھی طرح جانتی تھی، مگر اب وہ صرف ساحر کے لیے افسوس ہی کر سکتی تھی۔ صنم گاڑی سے اتر کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ ماویہ نے گاڑی سے اتر کر ایک دو اسٹوڈنٹ سے ساحر کا پوچھا۔ ساحر سے مل گیا۔ ماویہ اس کے پاس آ گیا۔ کیا تمہارا نام ساحر شیرازی ہے؟ ماویہ نے سامنے کھڑے ہو کے لڑکے کو غور سے جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جو کہ اپنے حلیے سے کسی بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہا تھا۔ ہاں ہے تو، اس نے ایسے جواب دیا جیسے احسان کر رہا ہو۔ تو یہ… ماویہ نے زوردار مکہ اس کے منہ پہ دے مارا، جس سے وہ دھول جا گرا اور اس کی ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ سارے لوگ دیکھ کر جمع ہو گئے۔ ماویہ نے اس کا گریبان پکڑ کے اسے اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا کار تک لایا۔ کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ تمہیں پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ وہ پورے راستے بولتے ہوئے جا رہا تھا۔ ماویہ چپ کر کے ڈرائیونگ کرتا رہا اور پولیس اسٹیشن کے باہر گاڑی روک کر ویسے ہی اسے گریبان سے پکڑ کر باہر نکال کے لایا۔ انسپکٹر صاحب اس کو لاک اپ کرو، نیا مہمان ہے یہ، اس کی اچھی طرح خاطر تواضع کرو، کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ماویہ نے ساحر کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی تھی میری کیوٹ سی پیاری سی وائف؟ ہور نے جیسے ہی فون اٹھایا، زین کی آواز کانوں میں پڑی تو اس کے ماتھے پہ موجود بل ختم ہوئے۔ تم بھی نا بس فون پر شروع ہو جایا کرو، ہور نے فون کو گھورتے ہوئے کہا۔ سامنے بھی شروع نہیں ہونے دیتی، اب فون پر تو پابندی نہیں لگاؤ یار، زین نے اس کو مزید چھیڑتے ہوئے کہا۔ شاید تمہاری بیٹی اور جوان، ہور نے بھولنا چاہا۔ ہاں یار میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میں جوان بیٹی کا باپ ہوں، آئی نو۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں بیوی سے باتیں کرنا چھوڑ دوں اور اپنا اوپر بڑھاپا طاری کر لوں، زین ہور کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ یہ کب کہہ رہی ہوں کہ میں تھوڑا کنٹرول کرو، یہ بتاؤ ابھی فون کیسے کیا؟ ہور نے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی میٹنگ سے فارغ ہوں، یہ بتاؤ تم کیا کر رہی تھی، اور میری پرنسس کالج گئی کہ نہیں؟ زین نے ہور سے پوچھا۔ چلی گئی ہے تمہاری پرنسس کالج، کل رات کو پتہ ہے کتنی دیر سے گھر آئی ہے؟ ہور نے کل رات کا حوال سنایا۔ یار تم فضا اور بلال کو بلا لیتی نا، یا تو تم ان کے پاس چلی جاتی، اور وہ ہادی کے ساتھ گئی تھی، پھر ٹینشن کس بات کی؟ زین نے ہور کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ شاہ تم بھی نا پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہو، اب تو دور اتنا بھی ماڈرن نہیں ہوا، اور ہمیں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے، حیا اب بڑی ہو گئی ہے۔ اس کو یہ اتنی رات تک ہادی کے ساتھ گھر آنا، صرف تمہاری پرمیشن کی وجہ سے میں چپ رہی ہوں، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے۔
हूर ने रसानियत से ज़ैन को समझाया। हूर, हादी हमारे सामने पला बड़ा है, घर का बच्चा है, क्या तुम्हें इस पे भरोसा नहीं है? ज़ैन ने हूर को समझाना चाहा, बात भरोसे की नहीं हादी, बहुत अजीज़ है मुझे, बिल्कुल हया की तरह, मगर खैर तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हो। ये बताओ कब तक वापसी है तुम्हारी? हूर ने ज़ैन से पूछा। इंशाल्लाह कल सुबह तक आ जाऊँगा। ओके, फ़ोन रखता हूँ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ज़ैन ने राब्ता मुंतक़िल करते हुए कहा। हाँ, साथ इकबाल ने क्या रिपोर्ट दी है? बाबर के बारे में कुछ ख़ास बात पता चली? माविया ने फ़ाइल बंद करते हुए इंस्पेक्टर साथ से पूछा। ये सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स और बाकी की डिटेल्स हैं। बाबर की और 3 दिन के बाद आज़म नामी बंदे ने से इस एड्रेस पे मिलने को कहा है। साथ ने पेपर माविया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, फिर तैयार है ना? ये आज़म नामी बंदा मुझे चाहिए, किसी भी सूरत ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। शायद इसके ज़रिए हमें गायब हुई लड़कियों का कुछ सुराग मिले। माविया ने पेपर देखते हुए साथ को कहा। जी सर, 3 दिन बाद आज़म आपकी सलाखों के पीछे मिलेगा। इंस्पेक्टर साथ ने माविया से कहा। और इस लंगूर की खातिरदारी की? माविया ने साहिर के बारे में दरियाफ्त किया। सर जी, मैंने तो काफ़ी हाथ साफ किया है, बाकी आप बता दें क्या करना है? साथ ने सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा। चलो चलकर देखते हैं, बल बल निकले हैं या फिर अभी बाकी है? माविया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ये एएसपी तो समझता क्या है खुद को? तू जानता नहीं मेरे बाप को, किससे पंगा लिया है तूने? 2 घंटे के अंदर तेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर ना करवाया तो मेरा नाम बदल देना। साहिर ने धमकी देते हुए माविया से कहा। इंस्पेक्टर साहब, ब्लेड लेकर आओ और इसकी आधी मूंछ काट दो, ताकि आईने में अपनी शक्ल देखकर खुद अपना नाम तजवीज़ कर ले। माविया के बोलने पर साथ फ़ौरन ब्लेड लेने चला गया। तुम अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हो एएसपी, बहुत पछताओगे तुम, साहिर ने चीखते हुए माविया से कहा। कुर्सी पर बंधे हुए होने की वजह से वो मज़ीद मज़म्मत न कर सका और साथ ने माविया के हुक्म की तामील करते हुए इसकी आधी पूँछ काट दी। सूजे हुए और नील पड़े हुए चेहरे पर आधी मूंछ में इसकी शक्ल अच्छी खासी मज़ाइका खेस लग रही थी। साहिर अब गुस्से में माविया को घूर रहा था। ब्लेड यहाँ दो साथ और उसकी रस्सियाँ खोलो। साथ जाने लगा तभी माविया आवाज़ देकर साथ से कहा। तुम्हें पता है साहिर, तुम्हारी ये कार्टूनों वाली हालत किस वजह से हुई है? सनम मेरी अकलौती बहन है, जिसका तुमने हाथ पकड़ने की गलती नहीं गुनाह किया है। इस गंदे हाथ से इसका हाथ पकड़ा था ना तुमने? माफिया ने ब्लेड इसके हाथ पर रखा, गहरा कट लगाते हुए पूछा। पुलिस स्टेशन पर साहिर की चीखों की आवाज़ से गूंज उठा। नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा। साहिर की 5 मिनट पहले वाली सारी अकड़ निकल चुकी थी। नहीं साहिर, अब ऐसा गदब बिल्कुल ना करना। अब तुम मुझे सनम के इस पास भटकते हुए नजर ना आए तो तुम्हारे ये दोनों हाथ में कंधे उखाड़ दूंगा और सीरियसली ऐसा करके मुझे ज़रा अफसोस नहीं होगा। माविया ने इसके दूसरे हाथ पर ब्लेड से गहरा कट लगाते हुए कहा। वो चीख मार मार के रोने लगा। आइंदा कभी भी इसे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे प्लीज़, अब मुझे मत मारना। साहिर रो रो के माफ़िया मांग रहा था। सिर्फ इसे ही नहीं, बल्कि अगर तुमने यूनिवर्सिटी या फिर बाहर किसी भी अपनी बाजी को छेड़ा तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा जो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा दर्दनाक होगा। अभी मैंने सिर्फ वार्निंग देने के तौर पर तुम्हारी आधी मूछें काट कर तुम्हें अंधा आधा मर्द बनाया है। अगर अगली बार तुम्हारी ऊँची हरकतें मेरी नज़र से गुज़री तो आगे तुम खुद समझदार हो। माविया ने खून वाला ब्लड इसकी शर्ट से साफ करते हुए कहा। सर जी, साहिर शराजी की बैल करवाने के लिए वकील आया, आपसे मिलना चाहता है। साथ ने माविया को बताया तो माविया लॉकअप से बाहर निकल गया। हादी, तुमने स्मोकिंग की है? हादी के रूम में आती हया ने चीख कर कहा। अरे यार आहिस्ता तो बोलो, हलक में पूरा लाउड स्पीकर फिट है तुम्हारे। कोई नहीं पी मैंने सिगरेट विगरेट। हादी ने रूम में बाहर नज़र डालते हुए कहा। और जहाँ पे फिजा, हूर और बिलाल बैठे हुए थे। ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी शर्ट से मुझे यहाँ तक कि सिगरेट की स्मेल आ रही है। तुम्हें पता है ना कितनी चिढ़ है मुझे स्मोकिंग से? हया ने हादी को घूरते हुए कहा। हया, थोड़ी देर पहले ही फराज आया था और वो स्मोकिंग कर रहा था, जब ही आ रही होगी स्मेल। जब जैन अंकल तुम्हारी खातिर सिगरेट छोड़ सकते तो मेरी क्या मजाल जो मैं सिगरेट को हाथ भी लगाऊं। आदि ने हया के चेहरे को अपनी नज़रों के सार में लेते हुए कहा। उफ, वाइड वाइड वेलवेट पर लेमन कलर के कुर्ते पे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत नहीं हो? हादी ने इसको देखते हुए कहा। किस मामले में भला? हया ने नासमझी से बैठते बैठते हुए पूछा। मोहब्बत के माम में, इतने सारे लोगों की जो मोहब्बत समटे हुए हो। हादी अब दीवार से टेक लगाए हुए उसे देख रहा था। तो शायद मैं हूँ इस काबिल कि मुझसे मोहब्बत की जाए। हया ने इतरा कर कहा और मुस्कुरा दी। इसमें कोई शक नहीं, आंटी अंकल के साथ साथ पापा मम्मा और अदील तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हादी इसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैठ के नीचे इसके पास घुटनों के टेक टेक लगा कर बैठा। हया, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जब हूर की आवाज़ पर हादी एकदम उठ खड़ा हुआ।
चलो बेटा घर चलते हैं, रात होने वाली है। हूर ने हया से कहा। मैं छोड़ देता आंटी आप दोनों को। हया को उठता देकर हादी ने कहा, क्या ज़रूरत है बेटा, एक गली छोड़कर ही तो घर है, हम चले जाएंगे, तुम रेस्ट करो। हूर ने मना करना चाहा। नहीं ठीक कह रहा है, हादी छुड़ाएगा, रात हो गई है। फिजा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। घर के गेट के पास छोड़कर हादी वहीं से घर चला गया। वो दोनों अंदर पहुंची। शेर खान ने आंखें मसलते हुए गेट खोला। हया की नज़रें बिल्डॉग पे पड़ी जो कि सो रहा था। हया नफ़ी में गर्दन हिलाती रह गई। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। हूर के मोबाइल पर जैन की कॉल आने लगी तो हूर अपने रूम में चली गई। हया भी अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मगर 2 कदम बढ़ते ही इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ, जैसे रूम में कोई मौजूद है। नाक के नथों से सिगरेट की स्मेल टकराई तो इसने मज़ीद आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट ऑन की। के सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें फटी के फटी रह गईं। वह सुकून से इसके बेड पर लेटा हुआ सिगरेट के गश लगाने में मसरूफ़ था और इसकी नज़रें सामने दीवार पर हया की इनरौश तस्वीर पर मरकूज़ थीं। तुम घर के अंदर कैसे और मेरे कमरे में, ये इस तरह। हया की रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। याद नहीं तुमने ही तो चैलेंज किया था कि तुम्हारे घर आकर तुम्हें छू कर दिखाऊंगा और बदले में मुझे। माविया बेड से उठते ही बोलने लगा। अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि हया ने दौड़कर दरवाजे की तरफ पहुंचना चाहा, मगर इसका इरादा भांप कर माविया ने लपक कर उसके पास पहुंचा और झटके से इसका हाथ से खींचकर इसे खुद से करीब किया। एकदम हया माविया के करीब हुई और हया के होठ माविया के गाल पर टच हुए। सब अचानक एक ही लम्हे में हुआ। माविया ने हया को दीवार से लगाया, इससे पहले वो चीख मारती। माविया ने इसके मुंह पर भारी हाथ रखकर इसकी चीखों का गला घोट दिया। खौफ से हया की आंखें फैल गईं क्योंकि वो इसके कमरे में रात के वक्त इसके बहुत नज़दीक खड़ा था। अगर वो ज़रा भी मजम्मत करती तो पता नहीं क्या कर सकता है। ये सोच आते ही वो खौफ से कांप लगी। नो नो बेबी, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए मुझे तुम्हारी। अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकली तो फिर जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा इसकी पूरी पूरी जिम्मेदार तुम खुद होगी। माविया ने अपने हाथ इसके होठों से हटाते हुए कहा और गहरी निगाहों ने इसको बेहद नज़दीक देख रहा था। 3 मुलाकातों में मैं जितना पढ़ बोल रही थी, इसकी बानिस्बत आज इसकी ज़बान तालू से चिपकी हुई थी। तुम्हें आज तक सबने ये बताया होगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो और वाक़ई इसमें कोई शक भी नहीं। मगर किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया होगा तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। तो तुम्हें आज मैं बताऊँगा तुम कितनी कम अक़ल हो, ताकि तुम दोबारा अपनी कम अक़ली का मुज़ाहरा करते हुए किसी दूसरे को अपने घर आने की दावत ना दे सको। हाथों की मिट्टी में हया के बालों को जकड़कर माफ़िया ने इसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। वो इसके इतने करीब आकर बोल रहा था कि हया को उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आज माविया मुराद तुम्हारे हुस्न को खराज भी देगा और अपने तरीके से दांत वसूल करेगा और तुम पर अपने हक की मेहर भी सावा छोड़कर जाएगा। इसकी बातें हया मजीद खौफजदा कर रही थी। इतना खौफ इसने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। खौफ से इसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तो मिस हया, तुमने कहा था कि हाथ लगाना तो दूर की बात, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुमको अंदाज़ा नहीं लड़कों से इतनी बड़ी-बड़ी बातें करना किस कदर महँगा पड़ सकता है। मुट्ठी से बाल आज़ाद करता हुआ मावी ने हया की थोड़ी अंगूठे और उँगलियों की मदद से पकड़कर इसका चेहरा ऊँचा किया। माविया के होठ और हया के होठों में बमुश्किल 1 इंच का फ़ासला था। हया ने बेसाख्ता खौफ से अपनी आँखें बंद कर ली और वो बग़ैर आवाज़ के रोने लगी। वो चंद मिनट इसको यूँ ही देखता रहा। वो उसको हर रूप में अपनी तरफ मुतवज्जह करने की सलाहियत रखती थी। हँसते हुए, गुस्सा करते हुए, लड़ते हुए, नर्वस होते हुए, डरते हुए और अब रोते हुए वो मबहूत सा इसको देखे गया। होठों से भटक कर इसकी नज़र गर्दन तक गए। दिल में आई हुई ख्वाहिश को दबाकर वो उसके आंसू अपनी उँगलियों के पोरों से साफ करने लगा। पुलिस वाले इतने भी बुरे नहीं होते, हर किसी को लूट का माल समझकर इसको हथियाने बैठ जाएँ। माविया हया के कुर्ते के ऊपर के 2 खुले हुए बटन बंद करते हुए इससे कह रहा था। माविया ने फासला कायम किया तो हया ने अपनी आंखें खोली। माविया ने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाली और हया का नाजुक हाथ अपने हाथों में लेकर इसे रिंग पहनाने लगा। हया ने बेसाख्ता अपना हाथ पीछे करना चाहा, जिस पर माविया के हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई और एक संजीदा निगाह माविया ने हया पे डाली और वो दोबारा से सहम गई। माविया ने रिंग हया की उंगली में पहना दी। ये रंग अब तुम्हारी उंगली से उतरनी नहीं चाहिए। चंद दिन है तुम्हारे पास, अपना माइंड अच्छी तरह तैयार कर लो। बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को लेकर आऊँगा। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ और तुम्हें ख्वाब भी सिर्फ मेरे देखने की इजाज़त है। माविया ने हुड अपने सर पर डाला और खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। हया काफ़ी देर तक शौक में खड़ी खिड़की को देखती रही, फिर ज़मीन पर अकड़ू बैठ गई।
हेलो, कहाँ है मेरी प्रिंसेस? थोड़ी देर के बाद हया के कानों में जैन की आवाज़ आई। बाबा। हया एक झटके से उठी और रूम का दरवाज़ा खोलते तेज़ी से बाहर निकली। जैन को सामने देखा, इसकी जान में जान आई। बाबा। वो दौड़ती हुई जाकर जैन के गले लगी और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। इस ऐसी अफ़तार पर जैन भी एकदम बौखला गया। अरे क्या हुआ मेरी जान, क्या हुआ हो हया? वो जैन के सीने में मुँह छिपाए ज़ोर से रो रही थी, जिस पर जैन परेशान हो गया। हूर भी रूम से बाहर आ गई। क्या हुआ, इसे तुमने डाँटा है हूर? ज़ैन संजीदगी से हूर से पूछने लगा, मैं तो रूम में थी अपने, अभी तुम दोनों की आवाज़ सुनकर आई हूँ। क्यों हुआ हया, क्या हुआ? देखो यहाँ मेरी तरफ, क्या हुआ बेटा? हूर ज़ैन को देखकर जवाब देकर हया से पूछने लगी, मगर इसने ज़ैन को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था और मुसलसल रोए जा रही थी। जाओ हूर, पानी लेकर आओ। हया, यहाँ देखो मेरी तरफ, क्या हुआ बेटा? जो हूर किचन की तरफ गई तो ज़ैन ने हया का चेहरा ऊपर करते हुए पूछा, बाबा क्यों चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? हया ने रोते हुए कहा, तो मेरी जान बाबा आ गए ना आपके पास, इस तरह क्यों रो रही हो हया? प्लीज़ बताओ, मुझे परेशानी हो रही है बेटा। ज़ैन ने हया के आंसू साफ करते हुए कहा। ज़ैन वाकई हया को इस तरह रोता देखकर परेशान हो गया। वो तो इससे पहले कितनी दफ़ा जाता रहा है, मगर हया ने कभी इस तरह रिएक्ट नहीं किया जैसे आज कर रही थी। जबकि आना तो इसे सुबह था, मगर शाम में ही मीटिंग से फारिग होकर रात की फ़्लाइट से घर पहुंचने का इरादा किया। एयरपोर्ट पर था तो हूर को फ़ोन करके बता चुका था अपने आने का, और हया को इसने खुद बताने से मना किया था। वो खुद अचानक से आकर इसे सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर इस तरह रोकर हया ने इसको सरप्राइज़ दे दिया। हया, पानी पियो और चलो रूम में, अपने तुम्हारे बाबा थके हुए हैं और तुम इस तरह परेशान कर रही हो। हूर ने इसे जैन से अलग करते हुए पानी पिलाया। ज़ैन और हूर दोनों ही इसके रूम में लेकर गए। वो बेड पे लेटते हुए इसकी निगाह खिड़की पे पड़ी। प्लीज़ ये खिड़की बंद कर दीजिए। हया के कहने पे ज़ैन और हूर ने एक दूसरे को देखा। हूर ने आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी। हूर, तुम कमरे में जाओ, मैं यहीं पर हूँ हया के पास। ज़ैन चेयर पर बैठते हुए बोला, नहीं तुम फ़्लाइट लेकर आए हो, जाकर रेस्ट करो, मैं हया के पास हूँ। हूर ने ज़ैन के एहसास से बोला, मेरी रिलैक्स हो, कौन सा पैदल चलकर आया हूँ, जाओ तुम सो जाओ। ज़ैन ने दोबारा कहा, और बाबा यहाँ आकर बैठे मेरे पास। हया ने आँखें खोलकर ज़ैन को अपने बराबर में बैठने का कहा, शायद वो बुरी तरह डर चुकी थी। ओके, रिलैक्स होकर सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ज़ैन बेड पे बैठते हुए इसके बालों में उँगलियाँ फेरने लगा। हूर जानती थी कि अब इसके यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़ैन ने अब सारी रात यहीं रहना है। वो रूम में चली आई। हया आँखें बंद करके लेटी हुई थी। ज़ैन खिड़की को देखते हुए सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है। कैसी तबीयत है आप साहिर की? अवेश शराजी ने हामिद से पूछा। सर तबीयत बेहतर है, अब साहिर सर अभी सोए हैं। हामिद ने अवेश शराजी को बताया। हामिद इसका ख़ास बंदा था। कौन है वो जिसने अवेश शराजी के बेटे की हालत की है? अवेश शराजी ने सोफे पे बैठते हुए पूछा। सर कोई नया एसपी आया है, माविया मुराद, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, मैंने मालूम करवाया है। वो मुराद इंडस्ट्री के मालिक खजर मुराद का बेटा है। हामिद ने मुअद्दब अंदाज में खड़े होकर अवेश शराजी को मालूमात फराम की। मुराद इंडस्ट्री, माविया मुराद। अवेश शराजी ने नाम दोहराया। और इससे 2 दिन पहले जिसने साहिल पर हाथ उठाया था, वो कौन है? अवेश शराजी ने हामिद से दोबारा पूछा। सर इसके बारे में मालूम नहीं हो सका, वो यूनिवर्सिटी के अंदर का लड़का नहीं था। जल्द मालूम करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और काम कैसा जा रहा है? 20 दिन का वक्त है माल अगर सप्लाई करने के लिए, मगर बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त पुलिस और मीडिया एक्टिव है, और इसने एएसपी की ईमान की कीमत का भी पता लगा। अपनी बात मुकम्मल करके अवैस शराजी ने सामने रखा मशरूब का गिलास हाथ में लिया और हामिद को वहाँ से जाने का इशारा किया। माविया ने रूम में आकर अपनी शर्ट उतारी। वैसे ही डोर नॉक हुआ। कम इन। माविया ने दोबारा शर्ट पहनते हुए कहा। खिज़र अंदर रूम में आया। माविया खिज़र को देखकर चौंका क्योंकि वो कभी भी इसके रूम में नहीं आता था। कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में? खिज़र ने गौर से इसके हाथों को देखा जो शर्ट के बटन बंद करने में मसरूफ़ थे। ज़रूरी काम से गया था, माविया ने मुख्तसर जवाब दिया। किस नोयत का काम ज़रूरी काम था, पूछ सकता हूँ? फिर खिज़र गौर से माविया के चेहरे को देख रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। ऐसे ही दोस्त से मिलने गया और एक केस के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात इसे देनी थी, वही देकर आ रहा हूँ। माविया ने संजीदगी से खिज़र को जवाब दिया। दोस्त का नाम? खिज़र ने पूछा। आप नहीं जानते, कुछ दिन पहले ही हमारी दोस्ती हुई है, आइए बैठकर बात करते हैं। माविया ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। वैसे हैरत की बात है, नए दोस्त ज़रा मुश्किल से ही बनाते हो तुम। खिज़र ने माविया को देखते हुए कहा। डैड बहुत जल्द आपको मिलवाऊंगा इससे। क्या आप मेरे दोस्त के मुतालिक ही बात करने आए हैं? माविया ने उकता कर पूछा।
नहीं तुम्हारे दोस्त के मुतालिक बात करने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे ये पूछने आया हूँ, आज तुम अवैध शराजी के बेटे को यूनिवर्सिटी से मारते हुए लेकर गए थे और जेल में बंद करके इस पर तशद्दुद किया। खज़र ने माविया से पूछा, इसे तशद्दुद करना नहीं कहते डैड, इसने गलती की थी जिस पर मैंने इसको इसकी गलती की छोटी सी सज़ा दी है। माविया ने नॉर्मल अंदाज में खज़र को जवाब दिया, तुम्हें मालूम है अवैध शराजी कोई आम बंदा नहीं है, इसके किन किन लोगों से ताल्लुकात हैं, तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का, इसके बेटे को मारकर तुमने क्या गलती की है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा वो गुस्से में क्या कुछ कर सकता है। ज़रा माविया पे शुरू हो चुका था, अगर वो आम बंदा नहीं है तो इसका ये मतलब हर किसी कि इसका बेटा कुछ भी करता है फिरे और इससे कोई पूछ-गुछ नहीं की जाए। वैसे तो मुझे उम्मीद है जितनी खातिर तवाज़े मैंने इसके बेटे की है वो अब तक इंसान का बच्चा बन गया होगा। अगर फिर भी वो नहीं सुधरेगा तो मैं दोबारा इसके बेटे का इलाज करूँगा। माविया ने संजीदगी से खज़र से कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, बाप हो समझाना मेरा फ़र्ज़ था, वैसे तुमने तो कसम खाई हुई है मेरी कुछ भी ना मानने की। खैर चलता हूँ। खज़र उठता हुआ बोला। माविया भी खड़ा हो गया। वैसे जिस दोस्त से तुम मिलकर आ रहे हो इस तरह की दोस्तियाँ सेहत के लिए मुफीद नहीं होती, आइंदा ख्याल रखना। खज़र ने गौर से माविया को देखते हुए बोला, क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। माविया ने नासमझी से खज़र को देखते हुए कहा, मतलब ये कि तुम कद में मुझसे बढ़ गए हो मगर बाप मैं हूँ तुम्हारा। खज़र ने माविया के करीब आकर इसके चेहरे का रुख अपने हाथ से आईने की तरफ करते कहा, इसके गाल पर लिपस्टिक का निशान वाज़ेह नज़र आ रहा था। फिर माविया के हाथ की हथेली खोली। खज़र ने माविया के चेहरे पर नज़र डाली तो माविया ने झेप कर नज़र नीचे झुका ली। खज़र कमरे से बाहर चला गया। माविया ने दोबारा आईने की तरफ देखा और अपने गाल पर लिपस्टिक के निशान हाथ पे से वो मंज़र याद आया तो उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाथ पर मौजूद हया के लिपस्टिक के निशान पर माविया ने अपने होंठ रखे और सोने के लिए लेट गया। रात भर डर की वजह से वो सो न सकी, बेसुकूनी की वजह से सुबह तक हया को बुखार हो गया। ज़ैन रात भर इसके पास बैठा रहा। सुबह जाकर हया की आँख लगी तो वो ऑफ़िस के लिए तैयार होने लगा। जाना ज़रूरी है ऑफ़िस, यकीनन तुम रात को सोए नहीं होंगे। हूर ने ज़ैन को ऑफ़िस के लिए तैयार होते देखा तो बेड से उठकर इसके करीब आई। जाना ज़रूरी है, जल्दी आ जाऊँगा, तुम हया के पास चली जाओ इसके रूम में, इसको टेम्परेचर है, इसके पास ही रहो कि अकेले में परेशान ना हो जाए। ज़ैन ने टाई की नॉब बाँधते हुए कहा, टेम्परेचर क्यों हो गया, कल तक तो अच्छी भली थी। हूर ने बेफ़िक्रमंदी से कहा, मामूली बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। ज़ैन ने इसके गाल थपथपाते हुए कहा, कैसे ना टेंशन हो, तुम दोनों ही मेरी जान हलकान करके रखते हो, दोनों ही परेशान करते हो हर वक़्त। हूर ने अपना सर ज़ैन के सीने पर रखते हुए कहा, तुमसे लाड उठवाने और नखरे दिखाने की आदत जो हो गई है। ज़ैन ने हूर के गिर्द हाथ हाइल करते हुए कहा, जल्दी घर आ जाना आज ऑफ़िस से। हूर ने इस तरह ज़ैन के सीने पर सर टिकाते हुए कहा, अगर इस तरह बोलोगे तो फिर मैं ऑफ़िस ही नहीं जाता। ज़ैन ने हूर के कान में सरगोशी करते हुए कहा, तुम्हारे आराम करने के एहसास से बोल रही हूँ। हूर में मैं सर उठाकर ज़ैन को घूरते हुए कहा। ज़ैन मुस्कुरा दिया। चलो रेडी होकर नाश्ता बनाती हूँ। हूर ने रूम से निकलते हुए कहा, नहीं ऑफ़िस में कर लूँगा, तुम हया के पास जाओ। ज़ैन खुदाफ़िज़ कहता हुआ घर से निकल गया। बाजी आप क्या बना रही हैं? नसीमा ने किचन में झाँकते हुए हूर से पूछा। हया के लिए सूप बना रही हूँ, तुमने सफाई कर ली? हूर ने बाउल में सूप निकालते हुए पूछा। सफाई तो कर ली है बाजी, ये हया बीबी को क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल झंगी भली थी। नसीमा को तजस्सुस हुआ, ऐसी रात में डर गई थी, नींद में तो सुबह बुखार हो गया। हूर ने सूप का बाउल पकड़ के किचन से निकलते बोला, बाजी कहीं कोई भूत वगैरह तो आशिक नहीं हो गया हया बीबी पर? खूबसूरत भी तो बहुत है, जभी तो नींद में डर गई होंगी। आप तो हर कोई दम दुरूद करवाए पहली फुर्सत में। नसीमा ने अपनी तरफ से मशवरा दिया, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सफाई कर लिया ना, चलो फिर बाहर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करती हुई जाओ। हूर ने नसीमा की बातें सुनकर गुस्से में कहा। हाया आँखें बंद करके लेटी थी जब इसकी मोबाइल पर बेल बजी। हादी की कॉल होगी, बाबा ने बताया होगा इसे मेरी तबीयत का। हया ने सोचते हुए मोबाइल पर नंबर देखा तो नंबर जाना-पहचाना हरगिज़ नहीं था। हेलो कौन है? हया ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, वही जिसकी तुमने रात की नींद और दिन का चैन छीनकर अच्छा खासा डिस्टर्ब कर दिया है। माविया की आवाज़ सुनकर हया की आँखें दोबारा खौफ से फैल गईं। तुम्हें नंबर किसने दिया मेरा? हया ने हैरत से पूछा। जब तुम्हारे घर आ सकता हूँ तुम्हारे बेडरूम तक तो तुम्हारा नंबर हासिल करना कौन-सा मुश्किल है मेरे लिए? मोबाइल से माविया की आवाज़ उभरी, क्या चाहते हो? हया ने कल रात का मंज़र सोचकर डरते हुए पूछा। तुम्हें? माविया ने जवाब दिया। शट अप, तुम 2 टके के पुलिस वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बकवास करने की? माविया की बात सुनकर हया ने डर को एक तरफ रखते हुए गुस्से में कहा, जन्म कल 2 टके वाले का काम तो मैंने किया ही नहीं और सोच समझ कर बोलो, दोबारा हिम्मत की बात करके मुझे चैलेंज कर रही हो। अगर आज रात आया ना तो वो ज़रूर कर जाऊँगा जो कल रात तुम्हारे आँसू देखकर करने से रुक गया था। माविया ने शहादत की उँगली को अपने होठों पर रखते हुए कहा, क्यों फ़ोन किया तुमने? हया ने इसकी धमकी देने पर एक बार फिर नर्म पड़ते हुए कहा,
طبیعت کیوں خراب کر لی تم نے، جبکہ کل رات تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ ایسی نازک مزاجی نہیں چلے گی میرے جیسے رف اینڈ ٹف بندے کے ساتھ۔ معاویہ چیئر کے پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تم اپنے آپ کو بہت ہیرو سمجھتے ہو، کل رات والی بات میں نے اپنے بابا کو بتا دی تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دیں گے۔ حیا نے اس کو ڈرانا چاہا۔ ہاں ہاں اوکے، تو ایسا کرو آج اپنے بابا کو میرے بارے میں بتا دو، اور یہ بھی بتا دو کہ میں آج خود آ رہا ہوں تمہارے گھر ان کی گولی کھانے۔ معاویہ نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، تم دوبارہ آ کے تو دکھاؤ، میرے بابا واقعی تمہیں جان سے مار دیں گے۔ حیا کو اس کے ڈیٹ پن پر ایک بار پھر غصہ آنے لگا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں؟ ویسے دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو۔ کیا خیال ہے آ جاؤ پھر آج رات؟ معاویہ نے مسکراتے ہوئے اس کی رائے لینی چاہی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی ساری خوش فہمیوں کو آگ لگا دو جا کر، حیا نے جلتے ہوئے کہا۔ شکل دیکھنے کی تو اب ساری زندگی عادت ڈالنی پڑے گی۔ معاویہ مراد خوش فہمیاں نہیں پالتا۔ ہاں اگر تمہیں کوئی خوش فہمی لاحق ہو گئی ہو تو معاویہ مراد کی دستک اور پہنچ سے دور ہو تو اس خوش فہمی کو فوراً دل سے نکال دینا۔ معاویہ نے جیسے حیا کو پاور کروایا۔ اوکے میں فون رکھتا ہوں، آنٹی سوپ لا رہی ہیں، وہ پی لینا اور ریسٹ کرو اب۔ معاویہ نے ساتھ کو آتا دیکھا فون بند کر دیا۔ ابھی حیا نے فون کان سے ہٹایا بھی تھا کہ حور سوپ کا باؤل لے کر روم میں داخل ہوئے۔ حیا جلدی سے اٹھو، شاباش یہ سوپ پیو، کچھ نہیں کھایا ہوا تم نے صبح سے۔ حور کے بولنے کی دیر تھی کہ حیا ایک دم چونکی۔ مما یہ کھڑکی کیوں کھولی آپ نے؟ پلیز بند کریں اسے، باہر کا دروازہ بھی چیک کریں پلیز۔ حیا کی حالت غیر ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے حیا؟ نسیمہ نے کھولی ہوگی کھڑکی، صفائی کر کے گئی ہے ابھی، اور دروازہ بند ہے باہر کا، جلدی جلدی سے سوپ ختم کرو شاباش۔ حور نے کھڑکی بند کر کے باؤل حیا کو پکڑاتے کہا، یہ انسان تو میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حیا سوچتی رہ گئی، یہ انگوٹھی بس تم نے اپنے پاس رکھنے کے لیے دی ہے؟ ہادی آفس سے آ کر بیٹھا تو فضا نے ہادی کے روم میں آ کر اس سے کہا، ارے مما آئیے۔ ہادی اٹھ کر بیٹھا، وہ انکار تو نہیں کرے گی؟ ہادی نے اپنے دل کے شک کو فضا کے سامنے رکھا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ انکار کرے گی؟ فضا نے خود الٹا ہادی سے سوال کیا تو مسکرایا، لگ تو نہیں رہا مگر پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ہادی نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا، چلو پھر ایسی بات ہے تو میں اور تمہارے بابا خود زین بھائی سے حور سے بات کر لیتے ہیں۔ فضا نے مسکراتے ہوئے ہادی سے کہا، کیا بابا کو پتہ ہے اس بارے میں؟ ہادی نے چونک کر فضا سے پوچھا، بیٹا تمہارے بابا کو آنکھوں کی زبان اور دل کی باتیں منہ سے بول کر سمجھانی پڑتی ہے، اور انہیں تمہاری پسند کا بھی میں نے ہی بتایا ہے۔ فضا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے پھر آج ہی مانگ لیں حیا کو زین بھائی اور حور سے؟ فضا نے مسکرا کر ہادی سے مشورہ مانگا۔ مما کیسی باتیں کر رہی ہیں، چھوٹی ہے ابھی، اس کی تو اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ہادی نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، چھوٹی نہیں ہے جوان ہو چکی ہے حیا، اور پھر سوچ لو خوبصورت لڑکیاں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ماں باپ کے گھر۔ پرسوں ہی میں اور حور پارک میں واک کر رہے تھے تو برابر والی مسز انصار حور سے حیا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اب کیا کہتے ہو؟ فضا نے ہادی سے دوبارہ پوچھا۔ پھر تو ابھی فوراً چلتے ہیں، آپ اور میں اور بابا، چلیں بس کھڑی ہو جائیں۔ ہادی کو ٹینشن ہو گئی اور ایک دم کھڑا ہو کر بولا، ہاں ہاں بیٹھ جاؤ بدو، چلیں گے آج ہی بات کریں گے، حیا تمہاری ہے۔ فضا نے ہادی کو اطمینان دلایا۔ کل ایک اور لڑکی غائب ہو گئی انسپکٹر ساتھ، اور اس کا 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ معاویہ نے فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، آج ہی اس لڑکی کے باپ اور بھائی رپورٹ لکھوانے آئے تھے۔ سر جی آپ سب آپ کے سامنے ہی ہے، کوئی صراحات آئے، کسی کا نام سامنے آئے تو کارروائی کی جا سکے، شک کس پر کرے بندہ؟ انسپکٹر سعد نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے کوئی صراحات نہیں آنے والا سعد۔ بابر جو اعظم نامی بندے سے ملنے والا تھا، اس کا کیا بنا؟ مجھے کیوں نہیں انفارمیشن دی گئی؟ معاویہ نے سختی سے پوچھا، سر جی بابر ملنے نہیں کیا، اعظم سے اقبال نے اب تک نظر رکھی ہوئی ہے، جیسے ہی کوئی حرکت محسوس ہوئی فوراً ایکشن لیا جائے گا۔ سعد نے معاویہ کو مطمئن کرنا چاہا، ایسا کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا، اور اس اعظم نامی بندے کو ڈھونڈ کر یہاں لے کر آؤ۔ معاویہ نے چیئر سے اٹھتے ہوئے سعد سے کہا، جی سر جی، 1-2 دن میں اس کی حاضری تھانے میں ہوگی۔ سعد کی بات سن کر معاویہ باہر نکل گیا۔ نسیمہ کام کر کے جا چکی تھی، حیا کو سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ حور گروسری کرنے کے ارادے سے باہر نکلی۔ بیگم صاحبہ آپ رکیں، میں آپ کو ٹیکسی لا دیتا ہوں۔ حور کو جاتا دیکھ کر شیر خان نے بولا، رہنے دو شیر خان، زیادہ دور نہیں چلنا پڑے گا، میں چلی جاتی ہوں، گھر کا دھیان رکھنا۔ حور کہتے ہوئے پیدل نکل گئی۔ ابھی وہ مین روڈ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی کہ ایک لڑکا اچانک سے بھاگتا ہوا آیا، اس کا بیگ چھیننے لگا۔ چھوڑو بیگ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حور نے بیگ کو کھینچتے ہوئے اس لڑکے سے زور سے بیگ چھینا اور حور کو دھکا دیا۔ وہ یکدم لڑکھڑا کر گر گیا، اس کے سر پر چوٹ بھی آئی۔ معاویہ جو اپنی گاڑی میں سامنے سے گزرتے ہوئے منظر دیکھ رہا تھا، گاڑی روکی اور تیزی سے بھاگ کر اس سامنے سے آتے لڑکے کو گریبان سے پکڑا، مگر وہ لڑکا اپنے گریبان چھڑوا کر بھاگ گیا، مگر بیگ اس سے وہی گر گیا۔ معاویہ وہ بیگ اٹھا کر حور کے پاس آیا، وہ ابھی تک گری ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ معاویہ نے سہارا دے کر حور کو اٹھایا، مگر حور کا چہرہ دیکھ کر ایک دم چونکا۔ اتنا رسپانسبل اس نے دل میں سوچا
जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू बेटा आपने मेरे लिए, हूर ने सर पकड़ कर बोला, और इसके सर पर चोट लगी थी। आपको चोट लगी है, आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। माविया को निकलना तो अपने ज़रूरी काम से था, मगर किसी एहसास के तहत इसके मुँह से निकल गया, शुक्रिया बेटा, यहीं करीब ही मेरा घर है, मैं अब घर जाऊँगी। वैसे भी गहरी चोट नहीं है जो डॉक्टर के पास जाना पड़े। हूर ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए प्लीज़ मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपके घर। मावी ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हूर थोड़ा हिचकिचाकर गाड़ी में बैठ गई। आपका क्या नाम है? हूर ने इससे पूछा। माविया। मावी ने कार स्टार्ट करते हुए जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है, क्या करते हो आप? हाँ, हूर इससे बेमकसद सवाल ही पूछ बैठी। बहुत शुक्रिया आंटी, मेरा काम बिगड़े हुए लोगों को राह रास्त पर लाना है, एक तरह से खिदमत खल्क भी कह सकते हैं। मैं पुलिस में हूँ। माविया ने स्माइल देते हुए जवाब दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हूर ने मुस्कुरा कर कहा। आपको अच्छा लगा मेरा पेशा? हैरत है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं, यहाँ तक कि मेरे अपने फादर को भी। माविया ने ड्राइव करते हुए जवाब दिया। मैं नहीं समझती पुलिस की जॉब गलत है, पुलिस तो हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं, हमारी हिफाजत करने के लिए, और वैसे भी पेशा कोई भी गलत नहीं होता, बस इंसान को खुद अपने पेशे से मुखलिस होना चाहिए। हूर ने अपना नज़रिया पेश करते हुए कहा, आई एम इम्प्रेस्ड, काश सब लोग आपकी तरह सोचने लग जाएँ। माविया ने मुस्कुरा कर कहा। कौन-कौन होता है आपके घर में? हूर ने दोबारा सवाल किया। मेरे फादर, मदर और एक छोटी बहन और मैं खुद। आपके घर में? माविया ने भी अपनी उलझन को क्लियर करने के लिए हूर से सवाल किया। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी एक बेटी। हूर ने जवाब दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा इस तरह सवाल करना? दरअसल मुझे आपको कुछ अपने अपने से लगे हो, ऐसा लगा जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ, इसलिए इस तरह सवाल किए। हूर ने वजाहत दी। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो, और सेम सेम फीलिंग मुझे भी अपनी-अपनी सी लगी। माविया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस घर में रहती हैं? माविया ने हैरत से चौंक कर कहा, जी ये मेरा घर है, आप अंदर आओ, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने इखलाक निभाते हुए कहा, नहीं आंटी, इस वक्त तो मुझे ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन ये वादा है आऊँगा ज़रूर, और अपनी मदर को भी लेकर आऊँगा, आपको इनसे भी मिलकर बहुत खुशी होगी। माविया ने कुछ सोच कर कहा, ओके मैं इंतज़ार करूँगी, बहुत शुक्रिया मुझे घर ड्रॉप करने का, बहुत अच्छे हो आप, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हूर को वो लड़का बहुत अच्छा लगा, इसने दिल से तारीफ़ करते हुए कहा, शुक्रिया कहकर शर्मिंदा ना करें, आप भी बिल्कुल मेरी मदर की तरह हैं, मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। माविया ने मुस्कुराते हुए कहा। हूर कार से उतरी तो कार आगे बढ़ाकर ले गया।